જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. અને જેમના નેતૃત્વ હેઠળ ધૃતિમાન નાથ સંપ્રદાયની ધજા વિશ્વફલક પર ફરકી રહી છે એવા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. શ્રી દત્ત જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે આપણે ખૂબ જ સરસ રીતે દત્ત ગોરક્ષ મહાપૂજન કર્યું અને દત્ત જયંતિ આનંદપૂર્વક મનાવી. કહેવાય છે ને કે ધ ગુડ પીપલ ગીવ યુ હેપીનેસ, ધ બેડ પીપલ ગીવ્સ યુ લર્નિંગ એન્ડ ધ બેસ્ટ પીપલ ગીવ યુ મેમોરીઝ. પરંતુ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદા, આપ તો આ બધાથી ઉપર છો અને એવું તો આયોજન કર્યું કે અમને સૌને ભગવા વેશ ધારણ કરાવી સાક્ષાત ગિરનારના પ્રવાસની અનુભૂતિ કરાવી દીધી. તો આ એક પૂજા આપણે ખૂબ જ આનંદપૂર્વક મનાવી. પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાનો પ્રિય શ્વાન ટાઈગરના ગુરુલીન થયાના આજે 12મો દિવસ છે. ટાઈગરને શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે આપને બુંદીનો પ્રસાદ આપવામાં આવશે, તો એનો લાભ સૌએ અવશ્ય લેવો. આગળ પણ વિવિધ પ્રોગ્રામ આ રીતના થતા રહેશે, તો આપ સૌ શ્રોતાજનો યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી પ્રવચનનો લાભ લેતા રહો અને આગળના પ્રોગ્રામની નોંધ રાખતા રહો એવી ખાસ વિનંતી છે. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પેપરનું લવાજમ રિન્યૂ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. જેમનું પણ લવાજમ રિન્યૂ કરવાનું બાકી હોય તે જલ્દીથી રિન્યૂ કરાવી લઈ. 320 રૂપિયા લવાજમની કિંમત રાખવામાં આવી છે, તો આ વાતની ખાસ નોંધ લઈ. હવે આજનો ભંડારો સ્વ ભાનુબેન કેશવભાઈ સ્મરણાર્થે કેશવભાઈ નાનપુરા સુરત તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે. તો પૂજ્યશ્રીની એ જ પ્રાર્થના કે ગુરુદેવની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. નવનાથ ધામના અન્નક્ષેત્રમાં યોગદાન આવ્યું છે. બાબુભાઈ ગામિત પાનવાડી ચોખા 50 કિલો, ઘઉં 30 કિલો. ભરતભાઈ આહિર કુંભારિયા ફ્લાવર 22 કિલો. કુસુમબેન ગામિત વ્યારા 2500 નંગ પુડિયા. તો આપના યોગદાન બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. વિદ્યાલક્ષ્મી નમસ્તેસુ બ્રહ્મ વિદ્યા સ્વરૂપિણી વિદ્યા દેહિ કલા દેહી સર્વ કામશ્ચ દેહિ મે. ઓમ બ્રહ્મ વિદ્યા મહાવિદ્યા સર્વ પાપનાશિની અવિચ્છન્ન સુખ નિત્યમ સર્વ વિદ્યા સ્વરૂપિણી. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત અલાખ નિરંજન. આદેશ આદેશ આદેશ. हमारे जीवन में महालक्ष्मी स्वरूप हमारे अंतःकरण में हमें ब्रह्म विद्या का प्रकाश देने वाले तथा हमारी पराविद्या को जागृत करने वाले ऐसे सद्गुरु श्री सानीनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ पिछले कई गुरुवार से माँ महालक्ष्मी
के रहस्यों का वर्णन यहाँ गुरु गादी से मैं कर रहा हूँ, ऐसी माँ महालक्ष्मी जो विद्या स्वरूप है, जो स्वयं ब्रह्म विद्या का ही रूप है और जिनके द्वारा हमारे अंतःकरण में हमें आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसी स्वयं पराविद्या भी माँ महालक्ष्मी ही है, जिनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबको जीवन जीने की कला प्राप्त हो और सभी की मनोकामनाएं माँ भगवती पूरी करे। तो माँ भगवती के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। जो भी नाथ भक्त यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। यह समस्त संसार क्षण क्षण विनाश की ओर जा रहा है। यह समस्त संसार में हम देखें तो संसार के जड़ और चेतन सभी पदार्थ कभी ना कभी विनाश की ओर चले जाते हैं। इसलिए अगर हम चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि यह पूरे विश्व में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। पेड़ हो, पौधे हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, नदी हो, या जितनी भी हमने स्थूल इमारतें बनाई हो, या फिर जितने भी स्थूल पदार्थ हो, ये सभी कभी ना कभी विनाश की ओर चले जाते हैं। जो यहाँ उत्पन्न होता है उसका विसर्जन कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जितने भी चेतन पदार्थ है, यह सभी चेतन पदार्थ, पशु हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, या जितने भी चेतन पदार्थ हो, ये सभी भी कभी ना कभी विनाश की ओर चले जाते हैं। जहाँ जड़ पदार्थ विनाश होते हैं उसे हम प्रलय कहते हैं, और जहाँ सजीव व्यक्तित्व विनाश हो जाते हैं उसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हो या विनाश हो, अंत में यह जगत में जो भी है वह सभी शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसीलिए हमें भी समझना चाहिए कि यह जो जगत है वो जा रहा है, कहीं ना कहीं वो जा रहा है। हम स्वयं भी एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। आज हमारे साथ जो हमारे घर में 5-10 है, वो भी एक एक करके कल चले जाएंगे। जिनके साथ हमारा संबंध है वो संबंधी भी एक एक दिन कभी ना कभी चले जाएंगे। हमारे शरीर के जितने भी कोष है, ये सभी कोष धीरे 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 जर्जित होते जाएंगे और ये भी क्षीण हो जाएंगे। और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो समय है, जिसे हम क्षण कहते हैं, पल कहते हैं, विपल कहते हैं, ये क्षण भी धीरे 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 चली ही जा रही है। जैसे दिन उगता है और चला जाता है, वैसे जीव जगत ये सब कुछ
कहीं ना कहीं काल के मुख में जा रहा है। और इसीलिए जो जा रहा है, जिसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, हमारे साथ जिस जगत का अस्तित्व है और जिस जगत से हमारा अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, उसका स्वीकार हम सभी को ज्ञान स्वभाव से कर लेना चाहिए। आज हम जानते सब कुछ है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसे मानते हैं और वापस उसे भूल जाते हैं। हमारे आसपास में कोई अघटित घटना घटित हो जाए, हमारे संबंध में कोई चला जाए या हमारे घर में कोई चला जाए, तो उस समय हम अनुभव सब कुछ करते हैं, लेकिन वापस जो जगत जा रहा है उसी जगत के साथ हम भी उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो जा रहा है उसमें एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन भले ही हम जाए, लेकिन कुछ न कुछ हमारे जीवन में अनुभव करते हुए हम जाए, या ऐसे चले जाए जिस जाने को मृत्यु न कहा जाए, जिस जाने को विनाश न कहा जाए, जिस जाने को अंजाम न कहा जाए, जो हम जा रहे हैं उसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाए। इसीलिए ये जगत का जो क्रम है जाने का, उसे किसी भी हालत में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और समझते रहना चाहिए। जैसे हम पुरुष हैं तो बार बार हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम पुरुष हैं। जो स्त्री है उसे बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो स्त्री है। जो बच्चा है उस बालक को बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बालक हूँ। या हम सभी को बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम मानव हैं। जो स्मृति ज्ञान रूप से हमारे अंदर संचित हो चुकी है, वो स्वभावगत रूप से उससे हम अवगत ही रहते हैं, उसको हम जानते ही जानते हैं। मैं मानव हूँ, मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये माला हमें जपनी नहीं पड़ती। हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति आके हमें गाली दे दे कि साला तू गधा है, जैसे हमें गाली दे दे कोई तू गधा है, तू कुत्ता है, तो हम क्रोध में आ जाते हैं, उससे झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम गधे नहीं हैं, मैं गधा नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं मानव हूँ। तो आप ये देखिए कि जो ज्ञान रूप में जो संचित हो चुका है उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही यह जगत जो जा रहा है उसे जानने में और समझने में बार बार कहने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज तक हमने समझा है, लेकिन ज्ञान रूप से, स्वभावगत रूप से हमें जाना है, इसका स्वीकार हमें नहीं किया है। और इसका स्वीकार हमने नहीं किया है इसीलिए जिसके साथ हम जा रहे हैं उस लक्ष्य के पीछे, उस गति के पीछे हमने हमारा लक्ष्य योग्य रूप से नहीं रखा है। हमारा लक्ष्य हमने रखा है सुख, कि हम जो भी करें
उसमें सुख प्राप्त करें। कल उठ के हम चले भी जाए, सुखी होके जाए। हम जो कुछ रख के जाए, हमारे पीछे जो है वो सुखी हो जाए। हम जो खाते हैं सुखी होने के लिए खाते हैं, हम जो दौड़ते हैं सुखी होने के लिए दौड़ते हैं। हम पूरा संसार रचते ही है सुखी होने के लिए। तो जहां हम जा रहे हैं, जिस नाशवंत की ओर जा रहे हैं, उसके पीछे जाते जाते हमारा लक्ष्य भी नाशवंत ही है। हमने हमारे लक्ष्य को रखा है सुख। जैसे ये जगत चला जाएगा, ये जीव चला जाएगा, हम चले जाएंगे, तो सुख कहाँ रहेगा? सुख प्रतिक्षण जाता है, जैसे आता है वैसे वो चला जाता है। तो जो नाशवंत की ओर जा रहा है, उसके पीछे का लक्ष्य हमने भी नाशवंत ही रखा है। और जहां लक्ष्य ही नाशवंत हो, वहां जीवन में आप सुखी कैसे हो पाएंगे? और इसीलिए समर्थ स्वामी रामदास ने भी कहा कि हे मन तू शोधून आण, कि यह जगामध्ये सुखी कोण आहे। समर्थ स्वामी रामदास ने कहा कि हे मन तू शोधून आण, ह्या जगतमध्ये सुखी कोण आहे। अभी आप देखिए, समर्थ स्वामी रामदास ने शरीर को नहीं कहा, किसी नाम को नहीं कहा, किसी स्त्री और पुरुष को नहीं कहा। क्या कहा है? हे मन तू शोधूनी आण, कि हे मन, मन को कहा है। शरीर को नहीं कहा, नाम को नहीं कहा, रूप को नहीं कहा, व्यक्ति को नहीं कहा, स्त्री को नहीं कहा, पुरुष को नहीं कहा, मन को कहा है। क्योंकि शरीर स्त्री पुरुष का हो सकता है, नाम एक व्यक्ति के अनेक हो सकते हैं, लेकिन मन स्त्री पुरुष नहीं हो सकता। मन का कोई नाम नहीं हो सकता। और मन का नाम इसीलिए नहीं हो सकता कि हम जब भी सोचते हैं और किसी को कुछ बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे? कोई आपको कुछ कहे कि भाई ये करो, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, मन से सोचता हूं और कहता हूं। उस समय पे आप अपना नाम क्यों नहीं लेते कि मैं सोचता हूं, कहता हूं, लेकिन क्या कहेंगे? ठीक है, मन से सोचता हूं, मन से विचारता हूं, मन में जो आए वो कहता हूं। क्यों मन में जो आए वो कहते हो? आप आपका नाम क्यों नहीं लेते? जिस नाम के आप व्यक्ति हो, वो व्यक्ति खुद अपने नाम से क्यों नहीं कहता? हम जो भी कुछ कहते हैं मन से सोच के कहते हैं, हम वही करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरा नाम श्याम है तो श्याम को जो ठीक लगा वो किया। नहीं, मेरे मन को जो ठीक लगा वो किया। उस समय पे हम नाम नहीं बोलते। मेरे मन में विचार आया बोलते हैं, मुझे विचार आया ये बहुत कम बोलते हैं। तो रामदास स्वामी ने सीधा लक्ष्य, सीधा तीर हमारे मन को मारा है कि हे मन तू शोधून आण, या जगामध्ये सुखी कोण आहे? कि हे मन तू जाके शोध, अगर तुझको कोई सुखी मिलेगा तो मुझे बता। और मन को कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा मन ही सुख ढूंढता है, और जहां सुख ढूंढने के लिए जाए वहां दुख लेके आता है। यानी हम सब जो दुखी है, हम सब जो कष्टी है, हमारे जीवन में जो उत्पात है, ये काहे का है? हमारे जीवन में जो ये उत्पात है हमारे शरीर का नहीं है, हमारे मन का है।
और मन क्या है? मन नाशवंत नहीं है, मन शाश्वत है। ये शरीर नाशवंत है, मन शाश्वत है। इसलिए जब ये शरीर चला जाएगा, मन नहीं दिखेगा। जब शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर भी मन रहेगा, मन की इच्छा रहेगी, मन के सुख दुख रहेंगे, मन में आने वाले विचार रहेंगे, मन की दुविधाएं शरीर छूटने के बाद भी रहेगी। तो ये जो भी कुछ कारण है, शाश्वत मन को मैं शाश्वत ही मानता हूं। शरीर जाए और मन भी मर जाए तो मन नाशवंत, लेकिन शरीर जाता है, मन नहीं जाता। और जहाँ मन नहीं जाता है, इसीलिए हम 12 दिन जो व्यक्ति गया है उसके आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा की मुक्ति किससे? मन से मुक्ति हो जाए। आत्मा की मुक्ति मन से हो जाए। अगर मन उसके साथ जुड़ा रहा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मन उसके साथ जुड़ा रहा तो आत्मा को वापस यह कष्ट सहन करने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मन शाश्वत है। और रामदास स्वामी ने सीधे मन को कहा है, क्योंकि मन जहां जाएगा शरीर उसके साथ जाएगा। मन मुंबई गया तो शरीर मुंबई जाएगा, मन काबा गया तो मन शरीर काबे जाएगा, मन काशी गया तो शरीर काशी जाएगा। तो जो लक्ष्य जो हमने बनाया है सुख को ढूंढने का, ये लक्ष्य बनाने वाला मन है। और मन जो जा रहा है, नाशवंत है, उसके पीछे ये शाश्वत मन जा रहा है। तो इस जगत में सुखी कौन है? तो आप स्वयं देखेंगे, इस जगत में सुखी कोई नहीं। कोई धन से सुखी हो तो कोई तन से सुखी नहीं। जो धन से सुखी है, जरूरी नहीं वो तन से सुखी हो। जो तन से सुखी है, जरूरी नहीं कि वो मन से सुखी हो। जो तन से, मन से, धन से सुखी है, जरूरी नहीं वो अपने परिवार से सुखी हो। तन, मन, धन और परिवार से जो सुखी है, जरूरी नहीं कि उसके जीवन में आने वाली वो समस्याओं से सुखी हो। जो सबसे सुखी है, वो जरूरी नहीं कि वो समाज से सुखी हो। प्रत्येक व्यक्ति एक जगह पे सुखी है तो दूसरी जगह पे वो दुखी है। तो सुखी किसे कहा जाए? सुख का अर्थ होता है जो सभी जगहों से जो मुक्त हो जाए, संतोषी हो जाए, वो सुखी होता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह से दुखी है। और इसलिए ये जगत में सुखी होने का उपाय क्या है? तो हमारा अध्यात्म शास्त्र कहता है कि ये जगत में सुखी होने का उपाय लक्ष्मी है। लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं। पिछले कई गुरुवार से मैंने श्री, लक्ष्मी यानी श्री के कई अर्थ निकाले हैं। कई प्रवचन में मैंने उसे लक्ष्मी यानी पैसे के रूप में लक्ष्मी माना, ज्ञान के रूप में लक्ष्मी माना, बल के रूप में लक्ष्मी माना, बुद्धि के रूप में लक्ष्मी माना है, प्रज्ञा के रूप में मैंने लक्ष्मी माना है। श्री के कई अर्थ मैंने अलग अलग रूप से किए हैं। और ऐसे मैंने अर्थ किए हैं कि जो अर्थ शाश्वत है, जीवन को सुख सार की ओर ले जाए, ऐसे जो अर्थ है वही मैंने बताया। तो ये जाते हुए जगत में हमने जो लक्ष्य होता है जाता हुआ, क्योंकि सुख आएगा और दुख उसके पीछे ही आएगा, तो सुख जाएगा। तो जाते हुए जगत के पीछे जो जाता हुआ हमने लक्ष्य रखा है, उस जाते हुए लक्ष्य को न रखते हुए स्थायी लक्ष्य को रखना है।
तो सुखी होने का मार्ग कौन सा है? सुखी होने का मार्ग है महालक्ष्मी की कृपा। जीव को अगर सुखी होना है तो जीव को जरूरी है कि वो श्री प्राप्त करे, विद्या प्राप्त करे। नमस्तेषु विद्या लक्ष्मी नमस्तेषु के लक्ष्मी का एक रूप है विद्या। ये पूरे संसार के दुख में से अगर उगरना है तो हमें जरूरी पड़ेगी कि हमारे पास विद्या हो। एक बार एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। उसे तीर्थ यात्रा के लिए कैलाश जाना था, उसे तीर्थ यात्रा के लिए काशी जाना था। वो काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए वो जा रहा था। पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन मन की इच्छा थी कि काशी में जाऊं, स्नान करूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी। जो थोड़े बहुत पैसे थे उसके पास वो लेके ट्रेन में, बस में वो निकल पड़ा। उसने देखा कि बहुत कम पैसे है, ट्रेन और बस से तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन काशी तक जाने के लिए बाकी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, बाद में मैं पैदल चला जाऊँगा। उसके पास जितने पैसे थे उसमें उसने मुसाफरी की, बाकी के थोड़े पैसे खाने पीने में खर्च हो गए। बचाते बचाते एक समय ऐसा है कि उसके पैसे पूरे हो गए। अब उसने देखा तो अभी काशी बहुत दूर है, 10 किलोमीटर और दूर है, लेकिन किसी और साधन में बैठने का पैसा उसके पास नहीं है। उसने सोचा चलो एक काम करूं, 10 किलोमीटर जाना है, चलते चलते मैं चला जाऊं। वो धीरे धीरे चलते चलते बैठता था, जाता था, उठता था, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। धीरे 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 वो चले जा रहा था। वो जा रहा था और मन से सोच रहा था कि भगवान, आजू बाजू में सब देखता था तो वो सोचता था कि भगवान तूने दुनिया कैसी बनाई है, असमान दुनिया बनाई। किसी को पैसा दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। ये बाजू में जो बंगले दिखते हैं, ये सब गाड़ियाँ जा रही है, कितने पैसे वाला, कितने सुखी है, और तूने मुझे ही कुछ नहीं दिया। और मैं इतना दुखी हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं जैसे तैसे मैं जा रहा हूँ। मैं तुझे इतना मानता हूँ, फिर भी तूने मेरे साथ अन्याय किया है। ये तेरा कैसा अन्याय है? ये सोचते सोचते वो जा रहा था। चलते चलते थक गया। जितना थकता था उतनी वो फरियाद करता था। हम भी हमारे दुख में भगवान को फरियाद करते हैं कि भगवान मुझसे ज़्यादा तो वो सुखी है। ये हमारी फरियाद चालू रहती है। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। हमारे हाथ में एंड्रॉयड और किसी के हाथ में एप्पल हो तो वो भी देख के दुख होता है कि जो અમારે પાસે પૈસા નહીં મળે એટલે અમે એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરીને પહેલાં પાસે પૈસા છે તો પેલો એપલ વાપરે છે. હવે પાછું પૂછે ક્યાંથી લાવ્યો, એટલે પેલો કે મારા પૈસાથી લીધો. કે આટલા બધા કમાઈ ગયો, બહુ આવતું લાગે સાઈડ પરથી. અને પેલો એમ કહે કે મેં નહીં લાવ્યો, મને કોઈ આપ્યું, તો કોઈ આપ્યું એમ કે એટલે પાછું દુઃખ. એને બધા આપે, મને કોઈ નહીં આપે. એટલે આ જ છે કે મન તું શોધ કે આ જગ્યા દુનિયામાં દુઃખી કોણ નથી. મોબાઈલથી બી દુઃખી છે લોકો. तो आगे आगे वो जा रहा था. फाटक आया ट्रेन का, और फाटक के पास, रेलवे स्टेशन के पास फाटक गिरा. सब गाड़ी वहाँ रुक गई. बहुत भीड़ थी. वो बेचारा चलता 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 गया. वो भी वहाँ थका हारा बैठा कि शांति से जा रहा था, ये ट्रैफिक के बीच में फंस गया, ये फाटक बंद हो गई. हे भगवान तू कैसा है, मेरे जीवन में मुझे कुछ दिया कि नहीं. ये बाकी के सब लोग कितने खुश हैं. थोड़ी देर में बाजू में एक मर्सिडीज कार आई. मर्सिडीज कार में आगे ड्राइवर बैठा था, पीछे सेठ बैठे थे, हाथों में वीटी पहनी थी, गले में चेन थी. उसको देखा और सोचा
और ड्राइवर को पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोले काशी जा रहे हैं। काशी जा रहे हैं। तो तुरंत उसके मन में विचार आया, देखो ये कैसा अन्याय है, मैं भी काशी जा रहा हूँ, ये भी काशी जा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं चलते चलते जा रहा हूँ, चप्पल भी फट गई है, और इसको कितना सुख है, इसके ऊपर कितनी कृपा है कि ये 4 व्हीलर में जा रहा है। बहुत दुख हुआ उसे, भगवान को बहुत गालियाँ दी। फाटक खुला, दोनों आगे निकले। दोनों आगे निकले, वो कार तो वहाँ पहुँच गई, आराम से दर्शन लिए। ये धीरे 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 पहुँचा और मंदिर के सीढ़ी के ऊपर बैठा और वही बोलने लगा कि भगवान तूने कैसी दुनिया बनाई, मुझे भिखारी बनाया और किसी को पैसादार बना दिया, मुझे कोई सुख नहीं, इनको सब सुख है। वो सेठ की गाड़ी भी वहाँ देखी, देखिए कितना सुखी, मुझसे आगे जल्दी आ गया। धीरे धीरे वहाँ सीढ़ी पे बैठा था, उसकी नज़र गई, नज़र देखा तो सेठ जी मंदिर से उतर रहे हैं। लेकिन जैसे उसने सेठ को उतरते हुए देखा वैसे सोचने लगा और पछताने लगा। क्यों? क्योंकि जो सेठ सीढ़ियाँ उतर रहे थे, सेठ के दोनों पैर नहीं थे, दोनों पैर जूठे पैर लगाए थे और अपने बाहों में घोड़ी लेके वो सेठ सीढ़ी पे से उतर रहे थे। 2 लोग उसे पकड़ के उतार रहे थे। तब उसने सोचा और अपने बोले हुए पे पछतावा करने लगा कि भगवान, मैं कहता था कि ये सुखी है, मैं दुखी हूँ, लेकिन अब जहाँ उसे देखता हूँ तब लगता है कि जो भी है मेरे ये दोनों पैर ठीक है, मैं अभी सुखी हूँ। तो आप देखिए, जब उसे पता नहीं था तो वो भगवान को कोसता था, वो सुखी है, मैं दुखी हूँ। लेकिन गाड़ी में बैठने वाला आदमी जो सेठ साहूकार था, और जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था और उसे पता चला कि उसके दोनों पैर तो कटे हुए हैं, तब वापस उसने भगवान को कहना चालू कर दिया, हे भगवान ठीक है, तूने मुझे पैसादार नहीं बनाया तो कुछ बात नहीं, इससे अच्छी तो मेरी स्थिति है, मेरे दोनों पैर तो है। अब आप सोचिए कि इसे कहते हैं मन का कारण, कि मन कभी कभी किसी का देख के दुखी हो जाता है, किसी का देख के सुखी हो जाता है। जहां दुख हो जाए यहाँ यातना होती है, बाद में हमें परिस्थिति पता चले कि जो है वो बराबर है, तब हमें निराकरण भी होता है। और इसीलिए शायद कहा गया होगा कि जिंदगी गम का सागर भी है, उसके उस पार भी जाना होगा। यानी ये गम का सागर है, कभी देख के गम, कभी खुशी, कभी गम। और ये गम के सागर से अगर पार करना है तो गम का सागर पार करने के लिए हमें विद्या प्राप्त होनी चाहिए, हमें लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए। और जहां हमें विद्या प्राप्त हो जाए लक्ष्मी के रूप में, ये जिंदगी गम का सागर है, उसके उस पार भी विद्या को प्राप्त करके जाया जा सकता है। तो विद्या क्या है? तो शास्त्रों ने कहा है विद्या 2 प्रकार की होती है। एक विद्या है अपराविद्या और दूसरी विद्या है पराविद्या। अपराविद्या का अर्थ है जिसमें हमारे पेट की भूख शांत हो। पेट की भूख शांत करना जो विद्या हमें सिखाए, हमारे पेट पूजा करना जो विद्या हमें सिखाए, सुख सुविधा प्राप्त करना जो विद्या हमें सिखाए, उसे कहा जाता है अपराविद्या। अपराविद्या स्थूल विद्या है जिससे हम वस्तु खरीद सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, जिससे हमें पद की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे पेट की भूख शांत होती है, जिसके कारण हम जीवन में बड़े होके हमारी सुख साहिबी को प्राप्त करने के लिए कुछ कमा सकते हैं। इन सभी विद्या को अपराविद्या कहा गया है। हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम वकील बन गए, हम टेक्नीशियन बन गए,
हम वैज्ञानिक बन गए, हम शिक्षक बने, हम जो भी कुछ बने, ये जो भी कोई विद्या है हमारे पेट की विद्या है। हम बनते ही है हमारे पेट के लिए। हम मेहनत क्यों करते हैं कि कुछ मेहनत करेंगे तो 2 पैसे मिलेंगे तो कुछ खाएंगे। तो कुछ खाने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए जो हमारी विद्या हो उसे कहा जाता है अपरा विद्या। यह विद्या यहीं तक सीमित रहती है, यह विद्या इसी संसार तक सीमित रहती है, यह जो विद्या है आप तक सीमित रहती है। लेकिन जब भी कभी एक समय ऐसा आता है जहां वह विद्या आपसे निवृत्त हो जाती है। जैसे हम शिक्षक की नौकरी करते हैं, हम शिक्षक बने, जब रिटायर हो जाएंगे वो विद्या निवृत्त हो जाएगी। उसका उपयोग करके ही हमने घर बार बसाया, संसार बसाया, बच्चों को पढ़ाया, हमने हमारे सुख संपत्ति जो भी थी हमने खरीदी, हमने खाया, हमने पिया, हमने पहना, इसी के कारण किया। कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अपने हाथ में सत्ता लेता है और कहते हैं लोगों का भला करने। लोगों का भला करने के लिए ये सत्ता बहुत कम उपयोग में आती है, पहले खुद का भला करने के लिए सत्ता होती है। यानी सत्ता पे बैठने वाला भी अपना पेट भरना, अपने परिवार को सुख शाही भी देना, ये ज़्यादा सोचता है। तो ये जो कुछ विद्या होती है एक समय तक हमारे साथ रहती है। कभी ना कभी उसका ऐसा समय आता है जहां यह विद्या हमसे मुक्त हो जाती है। हम रिटायर हो गए, हमारा पद चला गया, बाद में उसका कोई फायदा नहीं। हम मर गए, बाद में उसका कोई फायदा नहीं। हम बीमार बन गए, हमारे शरीर में रोग आदि लागू पड़ गए, बाद में इसका कोई फायदा नहीं। यानी ये जो भी कोई विद्या है ये टेम्पररी विद्या है। जिस विद्या को आप देख सकते हो उसे कहा जाता है अपरा विद्या। एक समय पे ये जाते हुए संसार के साथ वो भी जाएगी। लेकिन दूसरी जो होती है वो होती है पराविद्या। और पराविद्या का अर्थ होता है आत्मज्ञान, आध्यात्म ज्ञान। हमारे अंतर में जो आध्यात्म ज्ञान रूपी जो विद्या है यह पराविद्या है। आध्यात्म ज्ञान रूपी जो पराविद्या है, यह पराविद्या हमारे आत्मा को पहचानने की विद्या है, स्वयं को जानने की विद्या है। यह पराविद्या परमात्मा की पूजा की विद्या है कि परमात्मा की हम प्राप्ति कर सके। यह पराविद्या मूल रूप से मनुष्य को जानने की विद्या है। और यह पराविद्या का तात्पर्य प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा बसा हुआ है ऐसा आचरण करने की जो विद्या है उसे कहते हैं पराविद्या। अपराविद्या से आपका चित्र बन सकता है, लेकिन पराविद्या जहां है वहां चरित्र बन जाता है। अपराविद्या आपको व्यक्ति बना सकती है, लेकिन पराविद्या जहां आए वहां आपका व्यक्तित्व बन जाता है। अपराविद्या आपको नर बना सकती है, लेकिन पराविद्या जहां जुड़ जाए वहां नर नारायण बन जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि विद्या ही ब्रह्म गति। अपराविद्या हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। जिसके पीछे आप दौड़ते हो वो ब्रह्म है। इसी से सुख मिल जाए, इसी से मिल जाए, इसी से मिल जाए, सब कुछ मेरा बन जाए, ये ब्रह्म है। उस विद्या से आप ब्रह्म की प्राप्ति करते हो। लेकिन जहां पराविद्या प्राप्त हो जाए वहां ब्रह्म की प्राप्ति करते हो। अपराविद्या दुख की ओर ले जाती है, पराविद्या परमानंद की ओर ले जाती है। अपराविद्या में
जो आभास होता है उसी को हम सही मानते हैं कि कल उठ के मेरे बच्चे, मेरे संतान मेरी सेवा करेंगे, आभास। मैंने शादी कर ली, मेरी पत्नी आ गई, अब मैं सुखी हो जाऊंगा, आभास। स्त्री को भी ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो गई, मुझे पति प्राप्त हो गया, अब मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, आभास। मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, इससे मैं कुछ भी कर सकता हूं, आभास। ये जो कुछ है ये आभास पैदा करता है। लेकिन पराविद्या जो है ये अस्तित्व की ओर हमें ले जाती है, वास्तविकता की ओर हमें ले जाती है कि जितने भी संबंध है जरूरी नहीं है कि ये सभी संबंध तुम्हारे काम आए। आत्मनिर्भर बनना जो सिखाती है, जो अस्तित्व की ओर जाना सिखाती है, जो वास्तविकता के साथ जुड़ना सिखाती है, वो होती है पराविद्या। और इसलिए पराविद्या को ज्ञान विद्या कहा गया, आत्मज्ञान विद्या कहा गया, और अपराविद्या को केवल और केवल विद्या ही कहा गया है। लेकिन विद्या भी जरूरी है और पराविद्या भी जरूरी है और अपराविद्या भी जरूरी है। यह पूरे संसार में अगर हमें मानव बन के जीना है, या पूरे संसार में अगर हमें सुखी होना है, या पूरे संसार में हमें आत्मभाव से जीना है, सज्जन बन के जीना है, तो परा और अपरा दोनों विद्या की आवश्यकता है। हमारे पास परा विद्या आ गई लेकिन अपरा विद्या न हो तो हमारा घर बार कैसे चलेगा? हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? इसलिए परा और अपरा ये दोनों विद्या हमारे मानव जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन अपरा विद्या अगर हम में रही और पराविद्या समय आने पर हमारे अंदर विकसित नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि आप मानव बन के भी मानव नहीं कहलाएंगे, मानव बन के भी आप मनुष्य नहीं कहलाएंगे, मानव बन के भी आप नारायण नहीं बन पाएंगे। क्योंकि पराविद्या ही आपके द्वारा दूसरों के जीवन को सुखी करने की एक कला सिखाती है। इसलिए ये दोनों विद्या है। बाकी विद्या तो कई सारी है, मंत्र विद्या भी है, तंत्र विद्या भी है, ये जो वेद पुराणों की जो विद्या है ये भी विद्या है। इसे भी अपरा विद्या ही कहा गया है। ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ये पुराण हो, जितने भी शास्त्र हो, इसे भी अपरा विद्या कहा गया है। क्यों अपरा कहा गया? अपरा विद्या ऐसे इसीलिए कहा गया कि वो पुस्तक के रूप में, वो अक्षरों के रूप में है। अक्षरों को हम कैसे समझे, ब्रह्म से समझे या ब्रह्म से समझे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी पराविद्या तो उसे कहा जाता है कि जो अक्षरों से भी मुक्त हो जाए, जहां सब अदृश्य हो जाए, केवल और केवल ब्रह्म का अनुभव करे। जो अपने में है वो दूसरों में है, उसका जो अनुभव करे, अक्षरों से भी जो मुक्त हो जाए, जिसका कोई माध्यम ही न हो, ऐसी जो विद्या होती है वो पराविद्या होती है। इसीलिए जितने भी शास्त्र है, जितने भी पुराण है, ये सभी अपरा विद्या है, क्योंकि उसमें अक्षर समाया हुआ है। अक्षर का अपभ्रंश जो होता है उसी के हिसाब से हम उसको लेके भी कभी कभी चलते हैं। यानी अक्षर का भी ब्रह्म ज्ञान हो, यह बहुत जरूरी है। जैसे राम अयोध्या के राजा है, यह हमारे पुराणों में लिखा है कि राम अयोध्या के राजा थे। अब राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण को मारा था। अगर इतना ही हम समझेंगे तो अपराविद्या, कि राम को हमने राजा ही माना, राजा से अधिक कुछ नहीं। राम ने रावण को मारा, राजा का तो काम है असुरों को मारना, अधर्मी को मारना, मारा। लेकिन
राम राजा है, लेकिन राम राजाधिराज है, राम ही परब्रह्म है। ऐसा जब हमें समझ में आए तो समझ लीजिए कि अपराविद्या में पराविद्या का प्रागट्य है। जहां हम राम को राजा ही मानेंगे, वहां राम को हम परब्रह्म रूप से नहीं स्वीकारेंगे। जहां हम कृष्ण को कृष्ण ही मानेंगे, वहां कृष्ण की सभी लीलाओं में हमें कुछ ना कुछ गलत भी दिखेगा। लेकिन जहां हमने मान लिया कि नहीं, कृष्ण परब्रह्म है, जहां हमने मान लिया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वहां वही कृष्ण शब्द में पराविद्या प्रकट हो जाती है। और जहां कृष्ण को आप परब्रह्म मान लो, वहां मान लीजिए कि पूरा विश्व उसमें समा जाता है, आप उसमें समा जाते हो। और इसीलिए भगवद गीता में भी पराविद्याम अहम, कि मैं ही विद्याओं में पराविद्या मैं स्वयं हूं, ये भगवान ने खुद कहा। इसलिए अक्षर तो हो, लेकिन अक्षर को समझने की जो विद्या है वो होती है पराविद्या। राम को राजा ही मानेंगे तो संस्कृति के प्रति हम आदर भाव नहीं रख पाएंगे। राम को परब्रह्म मानेंगे तो राम शब्द के साथ जो प्रेम जुड़ेगा, प्रत्येक जीव में हम राम को देखेंगे। मुझ में राम, तुझ में राम, सकल पसारा राम, सब में हम उसको देखेंगे। इसलिए ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, ये जितने भी वेद है अक्षर ज्ञान है, इसीलिए उसको अपरा कहा गया। जो वेद पाठी होते हैं वो वेद पाठी वेदों का उच्चार करते हुए भी अपने पेट की सुधा शांत करते हैं, अपने पेट के लिए जीते हैं, अपनी रोजी रोटी यही मंत्र उच्चार चला के यजमान वृत्ति करते हुए वो जीते हैं। इसीलिए भी इसे अपरा ही कहा गया है। बाकी जो सब है विद्या, वो कला है। जैसे पत्थर में से मूर्ति बनाने की शिल्प कला, इसे कला कहा गया। ये विद्या है, लेकिन ये कला भी है, क्योंकि कला संस्कृति के साथ जुड़ी हुई होती है। कला का एक सेतु संस्कृति, संस्कृति से आई हुई विद्या, ये कला है। अगर कला जीवंत रहेगी तो संस्कृति जीवंत रहेगी। लेकिन कला का उपयोग भी हमारे पेट के लिए ही होता है, प्रतिष्ठा के लिए ही होता है। हमारे गुरुदेव का हम वहाँ मंदिर बना रहे हैं, कभी समय मिले तो एक आध बार जाके वहाँ देखना कि वहाँ जो कारीगर आए हैं वो कारीगर नक्शी काम करते हैं। अभी धीरे धीरे वहाँ चालू होगा सब, तो आपको पता चलेगा इसे कहते हैं कला। लेकिन कैसी कला? हजारों साल की पुरानी, करोड़ों साल पुरानी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई ये विद्या, उसका नाम दिया गया है कला। जो मदारी आता है वो बंदर का नाच नचाता है, ये मदारी की जो विद्या है उसे भी कला कहा जाता है। ये जो हम खेत में जो फसल पैदा करते हैं ये भी कला है, ये भी हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। और जैसे संस्कृति चली आई है वैसी ही रीत बात उपयोग करते हुए हम फसल लेते हैं। इसके लिए कोई स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया। ये जो शिल्पकार जो आते हैं उनके बच्चे कभी पढ़ने नहीं जाते, उसी से सीखते हैं। या कुम्हार जो मटके बनाता है ये भी कला, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई कला। जो सोनार होता है, ये दागिने बनाता है, उसके कभी कोर्स नहीं होते, संस्कृति के साथ जुड़ी हुई एक कला, जिसके साथ जुड़ने से हमारा भरण पोषण भी होता है। तो ये जितनी भी कला है, इसलिए कहा गया 64 कला है विविध रूप। ये कला भी विद्या है, संस्कृति से आई हुई विद्या, उसे भी अपरा ही कहा जाता है। तंत्र विद्या जिसे हम कहते हैं कि मैली विद्या, तंत्र विद्या, ये तंत्र विद्या क्या है? तो तंत्र विद्या भी अपरा विद्या है। क्यों? ये तंत्र विद्या से किसी का भला हो जाता है तो किसी का बुरा भी हो सकता है। जारण मारण और उच्चाटन किसी के भले के लिए करो तो किसी का बुरा उसमें अपने आप हो जाता है। तो ये जो भी कुछ है, मंत्र जाप, ये जो भी कुछ जहां दिखता है ये अपरा विद्या है। अपरा विद्या एक सीमा तक रहती है, लेकिन उसे भी लक्ष्मी ही माना गया है।
जो संगीत गाता है, संगीत बजाता है, ये विद्या है, अपरा विद्या। हाँ, संगीत बजाते 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 आपका तार परब्रह्म से जुड़ जाए, सबके हृदय के साथ जुड़ जाए, तो ये पराविद्या बन जाती है। यानी अपराविद्या बहुत जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन जीवन का उत्थान करने के लिए जरूरी है अपराविद्या के साथ पराविद्या भी हमारे अंदर में प्रकट हो। और जब पराविद्या हमारे अंदर प्रकट हो जाती है तो हम मानव को मानव की दृष्टि से हम समझ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े कलाकार, जो कलाकार को आप आदर देते हो, भाव देते हो, फिल्म इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े कलाकार, बहुत अच्छी कला है उसमें, अपराविद्या बहुत अच्छी है उनके जीवन में, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास पराविद्या भी हो। जो दिखते हैं उनका आचरण अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दारू पीने वाले, शराब पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा। स्क्रीन पे कुछ और दिखते हैं, बाद में उनका जीवन कुछ और होता है। तो अपराविद्या तो है, लेकिन परा जन्मी नहीं। अगर परा जन्मती है तो उसका व्यक्तित्व दूसरे इंसानों के प्रति आदर भाव का भी होगा, उसकी सेवा करने का भी होगा, और पूरे विश्व की सेवा करने के लिए उसका हृदय सबको स्वीकार करने के लिए वहाँ तैयार रहेगा। जो सत्ता के ऊपर बैठता है, प्रतिष्ठा मिली है, अपराविद्या है, लेकिन सत्ता के ऊपर बैठ के अगर वो काम नहीं करेगा तो समझ लीजिए इसमें परा का स्फुरण नहीं हुआ। सत्ता मिलती है लोगों का काम करने के लिए। 5 साल बैठने के बाद आप काम न करो तो समझ लीजिए कि आप मानव होने के बाद भी आपके पास जो विद्या है उससे आप मनुष्य नहीं बन पाए। आप नर बने, मनुष्य नहीं बन पाए। तो अपराविद्या और पराविद्या ये दोनों जरूरी है। अगर दोनों है तो ही हम पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं और हमारे जीवन को मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए जहाँ अष्टवक्र गीता कही गई, वहाँ अष्टवक्र गीता में भी अष्टवक्रा ने जनक राजा को पराविद्या का ज्ञान दिया कि आत्मा से आत्मा का अनुभव करो। पराविद्या के कई नाम है, इसे ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी ये लिखा है। ब्रह्म विद्या का अर्थ होता है स्वयं को जानना, आत्मा को जानना, अपने में ब्रह्म है उसे जानना, वो ब्रह्म विद्या। पहले खुद को जानना और बाद में पराविद्या हमारे में है, वही परमात्मा सब में है, ऐसे परमात्मा को जानना वो पराविद्या। ब्रह्म विद्या खुद के आत्मा को जानती है, आत्मा का अभ्यास करती है, और पराविद्या परमात्मा को जानती है, इसीलिए वो सब में परमात्मा को देखती है। तो ये दोनों का कार्य तो एक ही है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं वहां अलग अलग है। और इसलिए कहा गया कि धार्यते आत्मयोगी भी, कि आत्मयोगी जो होते हैं वो ही इसको धारण कर सकते हैं। महाविद्या को, पराविद्या को आत्मयोगी है वही धारण कर सकते हैं। एक बार हमारे भारत के वैज्ञानिक रामन, वो अपने सहयोग में दूसरे वैज्ञानिकों को लेना चाहते थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू बाहर पाड़ा कि मेरे सहयोग में जो काम लगे ऐसे वैज्ञानिकों को मुझे ढूंढना है। तो सब लोग आए, सबका इंटरव्यू लिया गया। उनको कोई जचा नहीं कि जो मेरे लायक हो, क्योंकि मैं विज्ञान की शोध करता हूँ, मुझे कोई सहवैज्ञानिक मिल जाए तो कि मैं मानव जीवन को बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक उसे मिला नहीं। इसलिए वो अपने कक्ष के बाहर चक्कर लगा रहे थे कि अब क्या करें। उस समय पे एक युवान आया
और एक युवान उनके आगे पीछे घूमने लगा। तो वैज्ञानिक ने कहा, रामन जी ने कहा कि भाई इंटरव्यू तो पूरे हो चुके हैं और सब रिजेक्ट हो चुके हैं, तो ये आगे पीछे घूमने का अर्थ क्या है, जाओ तुम भी रिजेक्ट हो। तो उस युवान ने कहा कि ये तो मुझे पता है मैं रिजेक्ट हूँ, लेकिन मैं इसलिए आगे पीछे घूम रहा हूँ कि यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले आपकी ऑफिस से हम सबको आने जाने के खर्चे के पैसे दिए गए थे। अब ये जो आने जाने के पैसे, जो खर्च के पैसे दिए गए, ये थोड़े ज़्यादा है। जो रकम जो दी थी वो भूल से ज़्यादा दे दी गई है, इसलिए जो ज़्यादा रकम है ये चुकाने के लिए मैं आया हूँ कि ये ज़्यादा पैसे हैं। रामन ने तुरंत कहा कि अब तक तुम रिजेक्ट थे, अब रिजेक्ट नहीं, अब सिलेक्टेड हो, तुम सिलेक्ट हो चुके। तो वो युवान ने कहा कैसे? तब रामन ने कहा कि मैं वैज्ञानिक ढूंढता था, पर लेकिन ऐसा वैज्ञानिक ढूंढता था कि जो मानव को समझ सके, मानवता को समझ सके। यानी मैं उसके अंदर कुछ विज्ञान की कमी है, वो तो मैं मेरे द्वारा उसमें दे दूंगा, उसका सुधार लूँगा, या मुझसे जो उत्पन्न होगा कुछ नई शोध, वो मैं व्यक्ति को विज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन मानव को मानव समझ सके ऐसा वैज्ञानिक मैं नहीं दे पाऊंगा। तू वैज्ञानिक है, लेकिन मानवता को के मूल्य को समझने वाला वैज्ञानिक है, इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए कि वैज्ञानिक तो था, लेकिन जो बाकी के ज़्यादा पैसे थे वो चुकाने के लिए आया, तो समझ लिया गया कि ये मानवतावादी है, ये मानवता के सिद्धांतों को जानने वाला प्रामाणिक है, उसके अंदर की पराविद्या स्फुरित है कि जो जरूरी है वो ले लिया, बाकी देने के लिए आ गया। ऐसा वैज्ञानिक ही मानव कल्याण के विज्ञान को ढूंढ सकता है। तो यहां से आप समझिए कि हमारे भीतर में जो परा का स्फुरण होता है, ये पराविद्या का स्फुरण हमें मानव से मानव को जोड़ता है। हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसको सब में देखने की जो कला है वो है पराविद्या। और इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि जो जीवन जीने की कला सिखाए, मनोकामनाओं की पूर्ति करे, वो महालक्ष्मी है। कला का अर्थ है जीवन जीने की कला, जीवन जीने की विद्या। अब हम सोचेंगे कि जीवन जीने की विद्या का अर्थ हो गया कि उस जीवन जीने के लिए कुछ नई विद्या होगी। देखिए, जीवन जीने की कोई विद्या नहीं होती। जीवन जीने की विद्या आपके अंदर का आत्मज्ञान, वो जीवन जीने की एक विद्या है। आज जीवन जीने की कला में हम कई जगह पे क्लास करते हैं, कई जगह पे कुछ सीखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन जीने की कोई कला नहीं होती, जीवन जीने की विद्या होती है। और वो विद्या का अर्थ होता है ऐसी विद्या कि जीवन जीने के लिए आपको कोई वस्तु की जरूरत न पड़े। आपके पास महल है तो आपके पास झोपड़ी है तो आपको महल की जरूरत न पड़े। आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उतने में ही आपका चल जाए, आपको ज़्यादा धन की जरूरत न पड़े। आपकी जितनी भी इच्छा है, वो जितनी भी इच्छा हो वो प्रमाण में हो, महेच्छा की आपको जरूरत न पड़े। वो होती है जीवन जीने की कला, विद्या। और जीवन जीने की विद्या मिलती कहाँ से? तो कहा गया है कि जीवन जीने की विद्या इस जीवन में केवल और केवल सच्चा सद्गुरु ही आपको दे सकता है। તમે જોયું આધ્યાત્મ જ્ઞાનના કોઈ ક્લાસ હોય એવું જોયું? બીજા બધા વસ્તુના ક્લાસ હોઈ શકે, પણ તમારા અંતરમાં આત્મજ્ઞાનનો દીવો પ્રગટાવવા માટે કોઈ ક્લાસ હોતો નથી. આત્મજ્ઞાનનો દીવો કોઈ ક્લાસ દ્વારા શીખવવામાં આવતો નથી કઈ રીતે પ્રગટાવે. આત્મજ્ઞાનનો દીવો પ્રગટાવવા માટે આપણા પોતાની અંદર ક્લાસ હોવો જોઈએ, આપણી પાત્રતા હોવી જોઈએ. આપણામાં જો પાત્રતા હોય અને તમે આધ્યાત્મિક ગુરુના ચરણોમાં જાઓ તો ત્યાંથી તમારા આત્મજ્ઞાનનો દીવો પ્રગટે, તમને ત્યાંથી પરાવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય. અને પરાવિદ્યા એ કેવલ और केवल गुरु कृपा ही केवलम. आपके गुरु में श्रद्धा रखे, गुरु की वाणी से भी परा आपके अंदर से स्फुर सकती है पराविद्या.
वालिया जो लुटारू था, वालिया लुटारू राम राम का नारद जी ने जाप दिया तो उसके अंदर की पराविद्या जागृत हो गई, वो ऋषि मुनि बन गया। आप देखिए कि जो लुटारू था उसको ऋषि मुनि बनाने वाला कौन था? गुरु। नारद जी ने उसको राम राम का जप किया, जो काम करता था मारने का उसने मरा मरा ही जपा, लेकिन मरा मरा जपते जपते राम राम होते गया और एक लुटारू वाल्मीकि, वालिया जो वाल्मीकि बना। इसे कहते हैं पराविद्या की का प्रागट्य, गुरु कृपा से पराविद्या का प्रागट्य। जेसल तोरल, जेसल जाडेजा डकैत था, लेकिन साध्वी के संग में आया, तोरल के संग में आया तो अंदर पराविद्या का स्फुरण हुआ, साधु बन गया। तो आप देख सकते हैं कि गुरु की जब कृपा हो जाए तो अपराविद्या के साथ साथ पराविद्या का भी आपके अंदर प्रागट्य हो जाता है। और जब पराविद्या का जब प्रागट्य हो जाता है तो समझ लीजिए आप मानव नहीं, आप मनुष्य नहीं, आप देव समान बन जाते हो। ये जाते हुए जगत में कुछ शाश्वत को आप स्थापन कर सकते हो और यही विद्या से आप दूसरों को सुख दे सकते हो, शांति दे सकते हो, समाधान दे सकते हो। वृक्ष के पास आने वाले को शांति उसके छाए में आने से मिलती ही है। वृक्ष के पास आने वाले को भूख लगे तो फल मिलते हैं। वृक्ष के पास आने वाले को ठंडी लगे तो लकड़ियाँ उसकी जलाने के लिए मिल जाती है। नींद आए तो सोने के लिए छाया मिल जाती है। ठीक वैसे ही आप में अगर पराविद्या गुरु कृपा से प्रकट हो गई तो आपके पास आने वाले को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, विश्राम मिलेगा और आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो दैविक विद्या है, जो सभी संतों ने पाई है, योगियों ने हजारों हजारों साल तपस्या करके जिसे आत्मसात किया है, वो विद्या होती है पराविद्या। अपरा सबके पास होगी, परा बहुत कम व्यक्तियों के पास होगी, और जिसके पास परा होती है वो नर में से नारायण बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि वो पराविद्या गुरु कृपा ही केवलम गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। और गुरु के द्वारा कैसे हो? तो मैं मानता हूँ आशीर्वाद से नहीं, प्रसाद से नहीं। पराविद्या की प्राप्ति गुरु के प्रवचनों से होती है, क्योंकि प्रवचन में से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द आपको स्पर्श करते हैं, आपके कानों को स्पर्श करते हैं, आपके हृदय को स्पर्श करते हैं। ये जो प्रवचनों के जितने भी शब्द है, ये सभी शब्द परावाणी है। ये परावाणी का धोध, यहाँ जब आप बैठते हो तो परावाणी की निश्रा में आप स्नान करते हो, आपके पूरे शरीर को ये शब्द स्पर्श करते हैं। यानी परावाणी से ही आपकी पराविद्या जागृत होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरुवार पे आइए। कई लोग ऐसे हैं जो आशीर्वाद लेने के लिए ही आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद लेने के लिए आ जाते हैं। એટલે તમે આશીર્વાદ લેવા આવો તો તમારે એમ સમજવાનું કે તમે ઓનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવો છો અહીંયાથી। ઘણા ઘરે ફોન પર બી કે દાદાને કહેજો ને આશીર્વાદ આપી દે, કાંઈ નહીં, ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી દીધા, લો આવી ગયા તમારામાં। મેં કેમ અહીંયા નહીં આવવાના? કોરોના ને એટલે તો કોરોનામાં બધું ઓનલાઈન થઈ જાય તો આશીર્વાદ બી ઓનલાઈન જોઈએ તમને। એટલે તારી જ ફોન કરીને કહી દે, દાદાને કહેજો કે આવવાનો હતો પણ બહુ કામ આવી ગયું ને એટલે નહીં અવાયું। એટલે એ કામ મહત્વનું, પણ આ કામ કંઈ નહીં। પછી ઘણા બધા હમણાં ઇલેક્શનમાં ઊભા રહ્યા, કાલે મને રિઝલ્ટ ખબર પડી, ઘણા બધા જીતી ગયા। અહીંયા આવવાવાળા મોટે ભાગના જીતા છે। દૂર દૂરથી ફોન આવ્યા કે દાદા અમે જીતી ગયા, અમે જીતી ગયા। અને મોટે ભાગના જીતા અહીંયા આવીને મળી ગયેલા તે મોટે ભાગના જીતા છે। ઘણા એવા બી છે જે દૂરથી હતા તે પણ જીતા છે, એણે ઓનલાઈન આશીર્વાદ દીધેલા। આ લોકો અહીંયા આવીને કેશ પૈસા લીધેલા। કેશ પૈસા એટલે પ્રસાદ, જે આ તમને હાથમાં જ મળે। તમે એટીએમમાં જાઓ અને એટીએમમાં ઉપાડો પૈસા, એટલે હાર્ડ કેશ તમને હાથમાં મળે, એને પ્રસાદ કહેવાય। અને દૂરથી ફોન કરીને જે માંગી લો તે ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર થઈ ગયા તમારામાં પૈસા। તો
ઘણા એવા હતા કે જેણે દૂરથી આશીર્વાદ લીધા તે પણ જીત્યા, ઘણા નજીકથી આશીર્વાદ લીધા તે પણ જીતા. અમારા દેવસર ગામની આખી પેનલ અહીંયા આશીર્વાદ લેવા માટે આવી. અમારો ખુલ્લો સપોર્ટ, તમે જ જીતશો, છેલ્લે સુધી સપોર્ટ, પ્રચાર તરીકે સપોર્ટ, ટોટલી પેનલ આવીને બેઠી. આશીર્વાદ બધા માંગી પણ ગયા, બધાને મળી પણ ગયા. હા, ઘણા એવા હતા કે જે ઓનલાઈન આશીર્વાદ જેણે લીધા આવી નહીં શક્યા, તે થોડા થોડા મતે હારી ગયા પાછા. પછી પાછા કે દાદા કૃપા નહીં કરી. કૃપા કઈ રીતે કરે? ઓનલાઈનમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થતાં થોડો વાર લાગે, પેલા ટાવરનો પ્રોબ્લેમ આવી જાય ને થોડો વાર લાગે પછી એની અંદર. આ હળ કેસમાં વાર નહીં લાગે, ફટાક તમે માંગો ને તમને જે માંગે તે પ્રમાણે મળે. પણ પેલા ઓનલાઈન આશીર્વાદ માંગે ને તો પછી અહીંયાથી તો બરાબર જ હોય. આ તો 4G નહીં, હું તો એવું માનું કે આ તો 40G છે. અહીંયાથી તો 40G જાય પણ તમારું પેલું 4G બરાબર નહીં ચાલે. એટલે ત્યાં પેલા આશીર્વાદ પહોંચતા પહોંચતા પેલું બર્ફિંગ થયા કરે, પૈસા જલ્દી અંદર પડે નહીં તમારામાં. એટલે બીજી વખતે આશીર્વાદ આવું કંઈ કશે ઊભા રહો ને તો રૂબરૂ આશીર્વાદ માંગવા આવજો. જો રૂબરૂ આવો તો હાર્ડ प्रसाद मड़ी जैसे काम थसे. तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि पराविद्या की प्राप्ति आशीर्वाद से नहीं होती, पराविद्या की प्राप्ति प्रसाद से नहीं होती. पराविद्या की प्राप्ति केवल और केवल प्रवचनों से होती है, क्योंकि प्रवचन आपको गुरु के संपर्क में लाते हैं, प्रवचन आपको गुरु के संसर्ग में लाते हैं, प्रवचन आपको गुरु के सानिध्य में लाते हैं और प्रवचन ही आपको गुरु के स्पर्श में लाते हैं. क्योंकि प्रवचनों की जो वाणी है ये परा है, परा से परा का स्फुरण होता है. इसीलिए એટલા માટે મેં બધાને કહું કે જો અંદરની પરા જાગૃત કરવી હોય અને ખરેખર જો જીવનમાં ઉત્થાન કરવું હોય તો ખાલી આશીર્વાદ લેવા માટે નહીં ને પ્રસાદ લેવા માટે ખાલી ખાલી નહીં આવવાનું. પ્રવચન સાંભળવા માટે આવવાનું. પ્રવચનમાં જે પ્રમાણે સેવા સોંપાઈ એ સેવા કરવા માટે આવવાનું. અને વધારેથી વધારે સમય આશ્રમના કામમાં તમે દોડી શકો, દાદાના કામમાં, એના માટે તમારે આવવાનું. જે એના માટે આવે છે સ્પેશિયલ, એને કહેવું નથી પડતું, એની પરા અહીંયાથી આપમેળે ખીલે છે. આજે જે આ બધા ભંડારા થાય છે, શું છે આ બધા ભંડારા? પૈસો છે તમારી પાસે, અપરા વિદ્યાથી પૈસો તો આવી ગયો, જે નોકરી કરતા હતા તેનાથી. પણ આ તમે ભંડારા કેમ કરાવો છો? મંદિરમાં દાન કેમ કરો છો? અહીંયા આવીને તમારી અંદર પરાવિદ્યા સ્ફુરિત થઈ છે એટલા માટે કરો છો. કે જે અમે કમાયા છે એ કમાયા અમારા છોકરાઓના લગ્ન માટે અમે વાપર્યું, આમાં વાપર્યું, તેને વાપર્યું. તો હવે જે કમાયા છે તેમાં અમને એવી ઈચ્છા છે કે દાદા અમે તો ખાધું જ છે પણ અહીંયા આવનાર તમામ આત્માઓને અમે ખવડાવીએ, એટલા માટે તમે આ વાપરો છો. તમે કંઈ દાન કરો છો લોકો સુધી પહોંચે એના માટે કરો છો. એનો અર્થ શું થયો? તમારી અંદર પરમાત્મા છે, બીજામાં છે, તમે જાણો છો એટલા માટે તમે આ ભંડારા કરાવો છો, મંદિરમાં દાન આપો છો, આશ્રમના ટ્રસ્ટમાં દાન આપો છો. તો એનો અર્થ થયો કે તમારી પરા સ્ફુરિત થઈ છે. એટલે પરાવિદ્યા એ સાક્ષાત લક્ષ્મી સ્વરૂપ છે. એ આપણને आनंद धन थी सुखी करे छे, संतोष धन थी आपने सुखी करे. आनंद धन और संतोष धन जहाँ मिले वो होती है पराविद्या. इसीलिए आज के गुरुवार पर माँ महालक्ष्मी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप स्वयं पराविद्या के स्वरूप में हो, आप ही हमारे अंतर में ब्रह्म विद्या के स्वरूप में हो. आपकी जब हम पे कृपा हो तो अपरा विद्या के साथ साथ पराविद्या का भी स्फुरण हमारे अंतःकरण में हो जाएगा. और इसीलिए हम हमारे गुरु को भी प्रार्थना करते हैं कि पराविद्या को देने वाले हमारे सद्गुरु सदा हमारे जीवन में उनका सानिध्य हम पे बनाए रखे, उनके प्रवचनों का स्पर्श हमारे जीवन में बनाए रखे और उनका सानिध्य सदा हमें प्राप्त होता रहे, जिससे हमारी अपराविद्या के साथ साथ हमारी पराविद्या भी हमारे जीवन में कार्यरत रहे, हमारा जीवन सार्थक हो. ऐसी प्रार्थना माँ भगवती स्वरूप हमारे सद्गुरु के चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में करते हैं. 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं.
गोरक्ष झालंधर चर्पटाश्च अड़बंगकानीफमच्छेन्द्रराज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरिसज्ञा भूम्यां बभुर्नवनाथ सिद्धः जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज का भंडारा गुरुलीन भानुबेन केशवभाई भगवाकर की ओर से है। गुरुलीन भानुबेन के स्मरण में केशवभाई भगवाकर और उनके पूरे फैमिली ने सूरत से आज के दिन का महाप्रसाद भंडारे के रूप में यहाँ किया है। तो गुरुलीन भानुबेन की आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनके परिवार को बार बार गुरु दरबार में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहे, सभी तंदुरुस्त रहे, सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में मैं करता हूँ। आज के महाप्रसाद में दाल चावल, कठोर तुवल का साग, सब्जी, जलेबी और मिर्ची का अचार है। तो आज के महाप्रसाद की व्यवस्था भगवाकर परिवार की ओर से है। परमात्मा उन सभी को भरपूर सुख प्राप्त करे। दूसरी बात कि आज का गुरुवार ये महाप्रसाद का गुरुवार है और इसीलिए आज एक विशेष प्रसाद भी श्रद्धांजलि के रूप में मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज से 12 दिन पहले, एक रविवार पहले, 12 दिन पहले हमारे आश्रम में श्वान था, उसका नाम था टाइगर, जो मेरे साथ ही रहता था और 13 साल की उसकी उम्र हुई, वो भी गुरुलीन हो गया। तो सुबह 6 बजे वो गुरुलीन हुआ। तो हम सब ने जैसे कोई मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी संस्कार के समान हमने उसको सब सुविधाएं दी, उसका क्रियाकर्म हमने किया। गुरुदेव की कमली का टुकड़ा उसके गफन के लिए हमने रखा, उसको उठाया, गंगा जल पिलाया, गुरुदेव के चरणों की तुलसी उसके मुंह में रखी, दत्तयाग की जो भस्म थी वो उसके पूरे शरीर पे मैंने मली और उसको जनेऊ पहनाते हुए, एक ब्राह्मण का रूप देते हुए, उसको चादर, हार की चादर पहनाते हुए, 2 मिनट उसका मौन करते हुए, गुरु दर्शन करवाते हुए, सिरा राजा के दर्शन करवाते हुए हमने ज़मीन में उसको दफन किया। तो एक सम्मान के साथ और राम नाम गाते गाते उसकी यात्रा हमने ये गेट तक निकाली। तो आज उसको 12 दिन हुए हैं। ये ऐसा मुक आत्मा था जो बरसों से आश्रम में रहता था और आश्रम का प्रसाद वो खाता था और उसके जीवन का जो भी एक सीमित कार्य था, जो आयुष्य था, हम जैसे आके यहाँ प्रसाद खाते हैं वही प्रसाद को लेते हुए, ग्रहण करते हुए, आश्रम को सानिध्य को प्राप्त करते हुए, मेरे साथ जीते हुए अपने कार्य के काल को उसने पूर्ण किया। तो भले ही वो मनुष्य पशु देह में हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यही पराविद्या का स्फुरण है कि प्रत्येक पशु में भी परमात्मा होता है। तो उसकी अंतिम यात्रा, उसकी अंतिम विदाई हमने उसे एक मनुष्य के रूप में ही दी है। तो आज 12वां दिन है और उसके साथ मेरे अंतर की आत्मीयता बहुत जुड़ी हुई है क्योंकि वो मेरे साथ ही रहता था। तो जैसे 12 दिन 13 दिन में हम 12वीं 13वीं का भंडारा करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना 12वें दिन पे गुरुवार आ रहा है, तो उसके स्मरण में सभी भक्तों को यहाँ जो आए हैं उनको बूंदी का प्रसाद बांटा जाए। तो ये प्रसाद मैंने आप सबके लिए यहाँ रखा है और यहाँ मैंने लिखा है, माई डॉग इज़ माई गॉड, कैसे भुलाऊँगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा, जब कभी होगी बातें वफा की, देगा मिसाले तेरी मेरी जमाना, सबकी जुबा पर होगी टाइगर तेरी ही कहानियाँ,
तेरी मेहरबानियाँ तेरी करदानियाँ कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। वी मिस यू डियर टाइगर, यू विल स्टे इन आवर हार्ट फॉर एवर एंड योर मेमोरी विल बी फॉन्डली रिमेंबर्ड। परम पूज्य छोटे दादा नवनाथ धाम। ये प्रसाद उसकी श्रद्धांजलि में मैं आप सबके तक यहाँ बैठे जो है उन सबको मैं पहुँचाता हूँ। तो ये प्रसाद के रूप में आज का गुरुवार भी रहेगा कि टाइगर के आत्मा को भगवान शांति दे और पुनः मनुष्य अवतार धारण करते हुए ये इसी कार्य में नाथपंथी बनकर जुड़े, ऐसी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। अब यहाँ से एक भजन गाया जाएगा और भजन के रूप में ही हम उसको श्रद्धांजलि देंगे और ये प्रसाद यहाँ सबको और बाहर जो बैठे हैं सबको, और आज रास्ते के ऊपर जो महाप्रसाद जाएगा उसमें भी ये प्रसाद आज सबको पहुँचाया जाएगा कि ये जो दिव्य आत्मा गया है उसकी विदाई हम प्रसाद से, भजन से और श्रद्धांजलि से हम करते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सत्यं सुंदरं सदा शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। महामूलो मंत्र नेरो भव भव केरो टाड़े फेरो, महामूलो मंत्र मेरो भव भव तेरो टाड़े तेरो। सत्संग नो रंग लागे घेरो, श्रद्धा सबूरी बांधे सेरो, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार साने दादा की जय, नाथ पंथ अमर रहे, शेरा राजा की जय, भारत माता की जय। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश, एक बार छोटे दादा की जय।